ہر ملک کو اپنے دشمنوں سے اپنی حفاظت کے لیے ہتھیاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دنیا میں بے شمار اقسام کے ہتھیار موجود ہیں جو جنگوں کے دوران مسلح افواج استعمال کرتی ہیں۔ ماضی میں ورلڈ وار II کے بعد ایک عرصے تک ہتھیاروں کو ترقی دینے کے رجحان میں کمی دیکھی گئی، لیکن دنیا کے حالات جب زیادہ کشیدہ ہونے لگے یا بڑی طاقتوں نے اپنے تیار کردہ ہتھیاروں کی فروخت کے ذریعے اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے اور دنیا پر اپنی برتری جتانے کے لیے کشیدگی کی فضا برقرار رکھنے کی کوششیں شروع کی، تو اسلحہ تیار کرنے والی کمپنیاں بھی زیادہ سرگرم ہو گئیں اور جدید ترین اسلحے کے حصول میں ترقی یافتہ سے زیادہ ترقی پذیر ممالک دلچسپی لینے لگے۔ عملی طور پر گنتی کے چند ممالک کو چھوڑ کر ہر ملک اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ جدید ترین اور زیادہ سے زیادہ ہتھیاروں کی خریداری پر خرچ کرتا ہے۔ اس کے باوجود ایسے بہت سے تباہ کن ہتھیار ہیں جو اتنے بیش قیمت ہیں کہ سوائے گنتی کے ایک دو ملکوں کے کوئی تیسرا ملک انہیں خریدنے کی سخت نہیں رکھتا۔ آئیے ان میں سے چند مہنگے ترین ہتھیاروں کے بارے میں آپ بھی جان لیں۔ P-81 پوسائیڈن نگران آبدوز شکن طیارہ۔ بوئنگ P-81 پوسائیڈن سمندروں پر گشت اور آبدوزوں کو تباہ کرنے والا طیارہ ہے۔ اگرچہ اس میں جنگی صورتحال میں مقابلہ کرنے والے حربی آلات بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن پوسائیڈن کا بنیادی کام سمندروں کی نگرانی کرنا ہے، جسے وہ اپنے ارد گرد نصب سینسر آلات کی مدد سے بخوبی انجام دیتا ہے۔ بوئنگ کمپنی نے اپنے 800-737 طیارے کے فیوزلیج مؤثر طور پر استعمال کرتے ہوئے اس میں اہم ترامیم کی ہیں اور اس طیارے کو ایک آبدوز شکن اور نگرانی کرنے والے طیارے میں بڑی عمدگی سے تبدیل کیا ہے۔ مثلاً کمپنی نے اس طیارے میں بوئنگ 737-900 کے بازو لگائے ہیں، جو اس لیے ضروری تھے کہ 4 AGM-84 کے میزائلوں کا بوجھ برداشت کر سکیں۔ اس طیارے کے سامان رکھنے والے خانے میں اب اگرچہ مسافروں کا سامان نہیں رکھا جاتا، بلکہ کارگو بائے میں MK-54 ٹارپیڈوز اور بارودی سرنگیں لادی جاتی ہیں۔ اس نگراں آبدوز شکن طیارے کو بنانے میں مجموعی طور پر $33 ارب کی لاگت آئی ہے۔ امریکی بحریہ کے پاس اس قسم کے 122 طیارے ہیں اور ایک طیارے کی قیمت $20.65 ہے۔ اس طیارے کی بیڑے میں شمولیت سے پہلے PC-3 اورینٹ طیارے سمندروں کی نگرانی کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ ٹرائیڈنٹ II میزائل۔ امریکی بحریہ کے لیے ٹرائیڈنٹ II میزائل لاک ہیڈ مارٹن کمپنی نے تیار کیا ہے اور اسے US نیوی کی تحویل میں موجود تمام میزائلوں میں انتہائی جدید ترین اور بہت زیادہ خوبیوں والا بیلسٹک میزائل قرار دیا جاتا ہے۔ اس میزائل کو ایک تھرمو نیوکلیئر وار ہیڈ سے لیس کیا گیا ہے۔ ٹرائیڈنٹ II میزائل اوہایو کلاس کی امریکی آبدوزوں سے چھوڑا جا سکتا ہے، جبکہ کچھ برطانوی آبدوزوں میں بھی یہ صلاحیت رکھی گئی ہے۔ یہ بیلسٹک میزائل 44 فٹ لمبا ہے اور اس کا وزن 80 ٹن ہے۔ میزائل 3 مرحلوں والے راکٹ پر مشتمل ہے اور 13,000 میل فی گھنٹہ سے بھی زیادہ کی رفتار سے سفر کر سکتا ہے۔ سوائے آزمائشی اڑانوں کے ان میزائلوں کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا اور شاید انہیں کبھی بھی استعمال نہ کیا جا سکے، کیونکہ اسے ایٹمی وار ہیڈ سے لیس کیا گیا ہے۔ ایک مرحلے پر اسی قسم کے روایتی میزائل کی تیاری پر غور کیا جا رہا تھا، لیکن اس پر کبھی عمل نہ ہو سکا، کیونکہ اس میں لگے ہوئے سینسرز ایٹمی بیلسٹک میزائل اور عام روایتی بیلسٹک میزائل میں کوئی فرق محسوس نہیں کر پا رہے تھے۔ اس میزائل کے ذریعے 4,600 میل دور ہدف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے پاس 5,061 ٹرائیڈنٹ II میزائل ہیں اور ایک میزائل کی قیمت $6.50 ہے۔ ان میزائلوں پر امریکہ اور برطانیہ نے مجموعی طور پر $53 ارب خرچ کیے ہیں۔ V-22 اوسپرے۔ بوئنگ کمپنی کا تیار کردہ V-22 اوسپرے ایک پروپیلر طیارہ ہے جو بہت کم فاصلے سے ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمودی ٹیک آف اور لینڈنگ کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اوسپرے ایک ٹیلیٹروٹو طیارہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 38 فٹ لمبے بلیڈز اوپر کی طرف اٹھ سکتے ہیں اور طیارے کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ ہیلی کاپٹر کی طرح ہوا میں بلند ہو سکے۔ V-22 کا ایک خصوصی فائدہ یہ ہے کہ ایک بار جب یہ اوپر ہوا میں بلند ہو جاتا ہے اور اس کے روٹرز آگے کی طرف پھیل جاتے ہیں تو پھر یہ ہیلی کاپٹر سے کئی گنا زیادہ فاصلہ طے کر سکتا ہے۔
ओस्प्रे त्यारा ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दोबारा ईंधन भरे बगैर वो 390 नॉटिकल मील तक का सफर कर सकता है। इस वक्त इसकी रफ्तार 260 मील फी घंटा से भी ज्यादा हो सकती है। अमेरिकी महकमा दिफा ने 460 ओस्प्रे के लिए 60 अरब 80 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं, जबकि एक V-22 की कीमत 9 करोड़ 52 लाख डॉलर है। बारूदी सुरंगों के खिलाफ मज़ाहमती हिफाजती बख्तरबंद गाड़ी। इराक और अफगानिस्तान की जंगों में अमेरिकी फौज जिन नए मसाइल में गिरफ्तार हुई थी, इनमें सबसे बड़ा मसला सड़क किनारे निस्ब वो देसी साख्ता बम थे जिन्हें IED भी कहते हैं। इन अनजान देसी बमों की वजह से अमेरिकी और इत्तेहादी फौजों को बहुत ज्यादा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। इस मसले को हल करने के लिए अमेरिकी फौज ने एक ऐसी बख्तरबंद गाड़ी तैयार की है जो बारूदी सुरंगों का धमाका बर्दाश्त करने के साथ अचानक छापा मार कार्रवाई का भी मुकाबला कर सकती है। ये ज्वाइंट माइन रेजिस्टेंट प्रोटेक्ट व्हीकल या MRAP गाड़ियां 2006 में बननी शुरू हुई थी और इस वक्त 26,500 से ज्यादा गाड़ियां अमेरिकी महकमा दिफा के पास हैं। इस किस्म की एक बख्तरबंद गाड़ी की कीमत 16 करोड़ डॉलर है और मजमूई तौर पर इन गाड़ियों के हसूल के लिए अमेरिकी हुकूमत को 41 अरब 60 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़े हैं। ये गाड़ियां मुख्तलिफ कंट्रैक्टर्स की जानब से तैयार की गई हैं और काम के लिहाज से इनकी शक्ल सूरत और साइज भी मुख्तलिफ है। ताहम ज्यादातर गाड़ियों में V सूरत की चेज लगी है ताकि गाड़ी के नीचे बम का धमाका हो तो इसे कम से कम नुकसान पहुंचे। इस बख्तरबंद गाड़ी की आहनी दीवारें और इसमें लगे शीशे 0.50 कैलिबर की गोलियों की पुछाड़ बर्दाश्त कर सकते हैं। CVN-78 त्यारा बरदार जहाज। CVN-78 को अमेरिकी बहरिया का पहले नंबर पर आने वाली नस्ल का त्यारा बरदार जहाज करार दिया जाता है। नॉर्थरोप ग्रूमैन कंपनी ने इस जदीद तरीन एयरक्राफ्ट कैरियर की डिजाइनिंग की है। अमेरिकी हुकूमत ने आइंदा 10 सालों में इस किस्म के 3 त्यारे बरदार जहाज़ों की फराहमी के आर्डर जारी किए थे। इस सिलसिले का पहला त्यारा बरदार जहाज USS जेराल्ड फोर्ड 2015 में अमेरिकी बेड़े में शामिल हुआ। इसकी तैयारी पर 9 अरब 80 करोड़ डॉलर लागत आई है और ये अब तक तैयार किया जाने वाला वाहिद सबसे महंगा जंगी हथियार है, जबकि मजमूई लागत का अंदाजा 34 अरब डॉलर लगाया गया है। ये अजीम एयरक्राफ्ट कैरियर तवील अरसे से खिदमात अंजाम देने वाले USS इंटरप्राइज की जगह ले लेगा। ये नया बहरी जहाज फुटबॉल के तकरीबन 3 मैदानों के बराबर लंबा है और इसका वजन 1 लाख टन से भी ज्यादा है। इसके फ्लाइट डेक पर 76 से ज्यादा त्यारे खड़े किए जा सकते हैं, जो एक अंदाजे के मुताबिक 4.5 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इस तैरते हुए किलानमच जहाज में 2 जदीद एटमी रिएक्टर्स निस्ब हैं और हर रिएक्टर 300 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये त्यारा बरदार जहाज अपने दिफा के लिए इवॉल्व सी स्पैरो मिसाइल से भी लेस है। इस त्यारा बरदार जहाज पर मुख्तलिफ फ़राइज़ की अंजामदेही के लिए 5000 अफराद पर मुश्तमिल अमला मौजूद होता है। 78 मीटर चौड़े अरशे पर 2 रनवेज बनाए गए हैं और इसके अरशे से रोजाना 75 जंगी त्यारे उड़कर 220 फजाई हमलों में हिस्सा ले सकते हैं, यानी हर 6 मिनट पर एक त्यारा उड़ान भर सकता है। इस तेजी के साथ कार्रवाई की एक वजह ये होती है डेक त्यारों को आगे धकेलने के लिए स्टीम पावर की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ताकत इस्तेमाल करता है। ये तरीकाकार तकरीबन वैसा ही है जैसा रोलर कोस्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये अजीम एयरक्राफ्ट कैरियर 30 नॉट या 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समुद्र में सफर कर सकता है। एक त्यारा बरदार जहाज की तैयारी पर 9 अरब 78 करोड़ डॉलर लागत आई है और 3 त्यारा बरदार जहाज तैयार करने पर तकरीबन 34 अरब डॉलर खर्च होंगे। वर्जीना क्लास आबदोज। पूरी दुनिया में इस वक्त वर्जीना क्लास आबदोज से ज्यादा जदीद तर कोई भी एटमी आबदोज मौजूद नहीं है। वर्जीना आबदोज 377 फुट लंबी है और इसका वजन 7800 टन है। ये वजन इतना है जितना 821 स्कूल बसों का हो सकता है। ज़ेरे आब सरगर्म अमल रहने वाली ये आबदोज जनरल डायनामिक, इलेक्ट्रिक बूट और न्यूपोर्ट न्यूज़ शिप बिल्डिंग नामी 3 कंपनियों ने मिलकर तैयार की है। इन कंपनियों के पास सिर्फ 2 ऐसे शिप यार्ड्स हैं जहां एटमी आबदोज तैयार करने की सलाहियत मौजूद है।
वर्जीनिया क्लास की आबदोजें 38 मुख्तलिफ अक़साम के हथियार ले जा सकती हैं, जिनमें टोमाहाक क्रूज़ मिसाइल, बारूदी सुरंगें और टारपेडोज भी शामिल हैं। इस वक्त इस किस्म की 8 आबदोजें ऑपरेशनल हैं, ताहम अमरीकी महकमा दिफा ने इस किस्म की 30 आबदोजों के लिए बजट में रकम रखी हुई है। एक आबदोज की कीमत 2 अरब 55 करोड़ 26 लाख डॉलर है और मजमूई तौर पर तमाम आबदोजों पर 83 अरब 70 करोड़ डॉलर की रकम खर्च की जाएगी। इन आबदोजों में दुश्मन की नजरों से पोशीदा रहने, खुफिया मालूमात जमा करने और जदीद तरीन हथियारों से लेस होने की सलाहियत मौजूद होती है और वह खुले समुंदर के अलावा साहली इलाकों में भी दुश्मन आबदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा ले सकती हैं। वर्जीनिया क्लास की आबदोजें 2043 तक अमरीकी बहरिया में शामिल होती रहेंगी और तवक्का है कि कम से कम 2060 तक सर्विस में रहेंगी और जो आबदोजें बाद में मिलेंगी वो 2070 की दहाई तक कारआमद होंगी। इस किस्म की एक आबदोज को साल भर चलाने के काबिल रखने के लिए 5 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। इसके अमले में 120 अरकान और 4 अफसरान शामिल होते हैं। वर्जीनिया क्लास की आबदोजों में ज़ेर आब रहते हुए सतह आब पर मौजूद अशिया को देखने के लिए पहली बार रवायती पेरिस्कोप की जगह फोटोनिक सेंसर इस्तेमाल किए गए हैं। इसे हाई रेजोल्यूशन कैमरों के अलावा लाइट इंटेंसिफिकेशन और इंफ्रारेड सेंसर, इंफ्रारेड लेज़र रेंज फाइंडर और इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट आलात से रास्ता किया गया है। मसूल पर लगे हुए इन सेंसर और कैमरों की मदद से सामने के मनाजर कमांड सेंटर के LCD डिस्प्ले पर बेखूबी देखे जा सकते हैं। FA-18EF सुपर हार्नेट बोइंग के तैयार करदा FA-18EF सुपर हार्नेट लड़ाका तैयारे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले FA-18 हार्नेट की जदीद तरीन सूरत हैं। ये तैयारे एक नशिस्त E और 2 नशिस्तों F वाले बनाए गए हैं और खास तौर पर अमरीकी बहरिया के जेर इस्तेमाल हैं। इन्हें त्यारा बर्दार जहाज़ों पर तैनात किया जाता है। FA-18EF मुख्तलिफ अक़साम के हथियारों से लेस होते हैं, जिनमें 20 मिलीमीटर दहाने की तोप भी शामिल है। इसके अलावा इसके परों के नीचे 11 खानों में फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले, फ़ज़ा से ज़मीन पर मार करने वाले लेज़र गाइडेड बम भी निस्ब होते हैं। सुपर हार्नेट जंगी तैयारे अमरीकी नेवी के जेर इस्तेमाल वो तैयारे हैं जिन्हें F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर तैयारों की शमूलियत के बाद भी सर्विस से खारिज नहीं किया जाएगा। एक सुपर हार्नेट फाइटर तैयारे की कीमत 9 करोड़ 8 लाख डॉलर है, जबकि 556 तैयारों के हसूल पर 57 अरब 80 करोड़ डॉलर खर्च किए गए हैं। सुपर हार्नेट जंगी तैयारों की लंबाई 60 फुट, ऊंचाई 16 फुट और परों का फैलाव 44 फुट है। ज्यादा से ज्यादा 30,000 किलोग्राम वजन के साथ ये तैयारे 50,000 फुट की बुलंदी तक परवाज के काबिल होते हैं और इनकी रफ्तार आवाज से तकरीबन दुगनी होती है। 2346 किलोमीटर तक दुश्मन तैयारों का पीछा कर सकते हैं। सुपर हार्नेट तैयारों में 5 अज़ाफ़ी फ्यूल टैंक निस्ब होते हैं, जिनकी मदद से वो दौरान प्रवास दीगर तैयारों के लिए टैंकर का काम भी अंजाम दे सकते हैं, जिसके लिए एक बैरूनी एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। F-22 रैप्टर लॉकहीड मार्टिन और बोइंग की मुश्तरका काविशों से तैयार किए जाने वाला F-22 रैप्टर दुनिया भर में सबसे ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट तैयारा तस्लीम किया जाता है। ये सबसे महंगा जंगी तैयारा भी है। एक जंगी तैयारे की कीमत 21 करोड़ 16 लाख डॉलर है। इस किस्म के सिर्फ 10 तैयारों की मालियत ग्रीनलैंड के मजमूई कौमी पैदावार से भी ज्यादा है। अमरीकी महकमा दिफा के पास इस किस्म के 188 तैयारे फिलहाल मौजूद हैं। पहली बार 2005 में रैप्टर तैयारे को इस्तेमाल किया गया। ये इंतहाई तेज रफ्तार स्टील्थ फाइटर तैयारे हैं और इनको इस तरह का बनाया गया है कि दुश्मन अभी इन्हें देख भी नहीं पाता कि वो अपने दुश्मन को शनाख्त करके इसका पीछा करते हुए इन्हें अपना हदफ बना लेते हैं। इस लड़ाका स्टील्थ तैयारे को 2 AIM-9 साइड वाइंडर मिसाइलों, 6 दरमियाना फासले तक फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइलों, 20 मिलीमीटर वाली एक तोप, 1000 पाउंड वजन वाले 2 बमों और 250 पाउंड वजनी 8 बमों से लेस किया गया है। इस किस्म के 188 तैयारों के हसूल पर मजमूई तौर पर 80 अरब 20 करोड़ डॉलर खर्च किए गए हैं। F-35 जॉइंट स्ट्राइक फाइटर F-35 लाइटनिंग II जेट फाइटर तैयारा बहुत ज्यादा फ़राइज़ अंजाम दे सकता है। इसके अंदर दुश्मन की नज़रों से पोशीदा रहने स्टील्थ की बहुत सी तरक्की याफ्ता टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल की गई हैं और सेंसर सिस्टम्स लगे हैं। ये तैयारा आवाज से ज्यादा रफ्तार से परवाज करने की सलाहियत रखता है। अमरीकी फौज की कोशिश है कि कम लागत वाले ऐसे स्टील्थ लड़ाका तैयारे बनाए जाएं जो यक वक्त मुख्तलिफ किरदार अदा कर सकें। मसलन फ़ज़ा से ज़मीन पर, फ़ज़ा से फ़ज़ा में हमले करने
करने के अलावा इन्हें जासूसी के मिशन पर भी भेजना मुमकिन हो। लॉकहीड मार्टिन और इसकी शरीक कंपनियां एक ही चेसिस इस्तेमाल करते हुए ऐसे 3 मुख्तलिफ अक़साम के तैयारे बना रही हैं। F-35A इस तैयारे की वो किस्म है जो रवायती टेक ऑफ और लैंडिंग की सलाहियत का हामिल होगा और इसे अमेरिकी फ़ज़ाइया बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करेगी। दूसरा तैयारा F-35B मुख्तसर फासले से टेक ऑफ कर सकेगा और मुदन लैंडिंग की सलाहियत रखने वाला होगा। इसे खास तौर पर अमेरिकी मेरिन फौजी इस्तेमाल करेंगे, जबकि F-35C तैयारा बरदार जहाज़ों से परवाज़ करने और उतरने की सलाहियत वाले होंगे। अमेरिकी महकमा दिफा ने इस किस्म के 2500 तैयारों के लिए बजट में 326 अरब 50 करोड़ डॉलर की रकम रखी है, जबकि सिर्फ एक F-35 तैयारे की कीमत 10 करोड़ 95 लाख डॉलर है। इन तैयारों की डेवलपमेंट में तकरीबन 15 साल का अरसा लगा है, जिसकी वजह से इसे बनाने के अखराजात में साल ब साल इजाफा होता गया और एक अंदाजे के मुताबिक अखराजात 1 खरब 50 अरब डॉलर तक पहुँच गए। अंदाजे के मुताबिक ये तैयारे 55 साल तक कारआमद रह सकते हैं। DDG-51 डिस्ट्रॉयर। DDG-51 को अर्ली बर्ग क्लास डिस्ट्रॉयर भी कहा जाता है। इस किस्म के तबाहकुन जहाज 1991 से सर्विस में है। फिलहाल 60 सरगर्म अमल हैं, जबकि मजीद 15 महकमा दिफा के बजट में शामिल किए गए हैं। इस किस्म का हर जंगी बहरी जहाज एक सिरे से दूसरे सिरे तक 500 फुट से ज्यादा तवील है। अब कुछ इससे बड़े डिस्ट्रॉयर बनाए जा रहे हैं, जिनका वजन तकरीबन 920 टन होगा। ये तबाहकुन जहाज मुख्तलिफ कंट्रैक्टर कंपनियां बाथ आयरन वर्क्स, जनरल डायनामिक्स और नॉर्थरूप ग्रामीण ने मिलकर तैयार किए हैं। हर डिस्ट्रॉयर पर 350 अफराद पर मुश्तमिल अमला तैनात होता है। इस किस्म के सबसे नए डिस्ट्रॉयर को टोमाहाक मिसाइलों से लैस किया गया है, जो बिल्कुल अमूदी दागे जा सकते हैं। ऐसे 2 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम इस जंगी जहाज में निस्ब है। इसके अलावा 5 इंच दहाने वाली एक तोप, 13 शिकन मिसाइलों, टैंक शिकन मिसाइलों और बारूदी सुरंगों से पेशगी आगाह करने वाला एक सिस्टम भी इसमें लगाया गया है। एक डिस्ट्रॉयर की कीमत 1 अरब 29 करोड़ 30 लाख डॉलर है और इस किस्म के 75 तबाहकुन जहाज़ों पर महकमा दिफा को 101 अरब 80 करोड़ डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। दीगर डिस्ट्रॉयर जहाज़ों की तरह DDG-51 भी छोटा लेकिन तेज रफ्तार और तेजी से अपनी सिमत तब्दील करने वाला जंगी जहाज है, जो बड़े बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और करीब से हमला करने वालों को मार भगाता है। दिलचस्प बात यह है कि इस कार्रवाई के लिए ये गाइडेड मिसाइल भी इस्तेमाल कर सकता है। 12 अक्टूबर 2000 को यमन की बंदरगाह अदन में जिस अमेरिकी बहरी जहाज USS कूल को एक खुदकश हमले में तबाह किया गया था, वो भी अर्ली बर्ग क्लास का डिस्ट्रॉयर जंगी जहाज था, जिसे 200 से 300 किलोग्राम वजनी धमाका खेज मवाद इस्तेमाल करते हुए खुदकश बमबारों ने तबाह किया था। इस हमले में अमले के 17 अफराद हलाक हुए थे। ताहम ये डिस्ट्रॉयर मरम्मत के बाद 2001 में ड्यूटी पर वापस आ गया था।